So why Good Friday and not a Bad Friday? क्यों हम Good Friday कहें, क्यों ना Bad Friday? After all, Jesus died on this day, isn't it? क्योंकि आखिर इस दिन पर यीशु मरा है ना? Yes, but his death has brought us much good for this world which is lost in sin. लेकिन उसकी मृत्यु ने पाप में खोए हुए इस दुनिया के लिए बहुत सारी अच्छाई को उत्पन्न किया है. It is a message which every disciple of Jesus should constantly remember. ये एक ऐसा संदेश है जो यीशु मसीह का हर चेला लगातार याद करना चाहिए. Even if you are not a disciple of Jesus, you must hear this message. अगर आप यीशु मसीह के चेले नहीं हो फिर भी आपको ये संदेश सुनना चाहिए. Because how you respond to it will impact your destiny, your eternity. क्योंकि इस संदेश के प्रति आपका जो प्रतिक्रिया होगा वो आपके अनंतता का निर्णय करेगा. So today, as I told you, I am preaching from the Gospel of John. आज जैसे मैंने आपको बताया कि आज मैं यूहन्ना के सुसमाचार से प्रचार कर रहा हूं. एंड सो लेट मी रीड फॉर यू द वेरी फर्स्ट वर्स 25. मैं आपके लिए 25वें आयत को मैं पढ़ूंगा. बट स्टैंडिंग बाय द क्रॉस ऑफ जीसस वेयर हिज actually, in some translation starts before that, it says, so the soldiers did these things, but standing by the cross of Jesus were his mother and his mother's sister, Mary the wife of Clopas and Mary Magdalene. अतः सैनिकों ने ऐसा ही किया. यीशु के क्रूस के पास उसकी माता और उसकी माता की बहन, क्लोपास की पत्नी मरियम और मरियम मगदलीनी खड़ी थी. Our passage begins by mentioning what is happening at the foot of the cross. हमारा जो आज का खंड है उसकी शुरुआत ये बोलकर होता है कि क्रूस के नीचे उस दिन क्या हो रहा था. The cross on which Jesus was hanged, उस क्रूस के नीचे जिस पर यीशु को चढ़ाया गया था. There were soldiers there, वहां पर सैनिक थे. There were also some followers of Jesus, वहां पर यीशु मसीह के कुछ अनुयायी भी थे. The writer of this gospel mentions 4 women followers. ये सुसमाचार का लेखक हमें बताता है कि उन चेलों में से 4 स्त्रियां थी. जीसस मदर, यीशु की माता, हिज मदर्स सिस्टर, उसकी माता की बहन, क्लोपास की पत्नी मरियम द वाइफ ऑफ क्लोपास, मेरी द वाइफ ऑफ क्लोपास, एंड मेरी मैगडलीन और मरियम मगदलीनी. In order to appreciate what happens next, we must understand what has happened so far. आने वाले बातों को सराहने के लिए हमें अभी तक जो बातें घटी हैं उसको समझना होगा. The Jews, especially their religious leaders, wanted Jesus to be put to death. यहूदी लोग, खासकर उनके धार्मिक अगुए, यीशु को मार देना चाहते थे. His teachings and his actions were too problematic for them. उसकी शिक्षाएं, उसके कार्य उनके लिए बहुत सारे समस्याओं को खड़ी कर रहे थे. But only the Romans who ruled over these Jews had the power to give capital punishment. लेकिन इन यहूदियों के ऊपर राज करने वाले रोमियों के पास ही मृत्यु दंड देने का अधिकार था. यहूदियों के पास कोई अधिकार नहीं था. There was no authority in the hands of the Jews to give capital punishment. The Roman governor Pilate, Pontius Pilate, did his investigation and finds out that Jesus was innocent. रोमी गवर्नर पिलातुस यीशु को जांच कर उसे निर्दोष पाता है. So he thought, in order to pacify these Jews, I will just scourge or flog Jesus
and let him go. वो सोचता है कि इन यहूदियों को शांत करने के लिए the Roman governor's main job was to maintain peace. So in order to just maintain peace, just to pacify the Jews, he says, I will scourge or flog Jesus, and that's it. रोमी गवर्नर का काम था शांति बहाल करना, और उसने सोचा कि इन यहूदियों को शांत करने के लिए मैं यीशु को, भले निर्दोष है लेकिन मैं उसको कोड़ों से मारकर उसका दंड खत्म कर दूंगा. I want you to read John chapter 19 and verse 1. मैं चाहता हूं कि आप 19वें अध्याय के पहले आयत को पढ़ें. Then Pilate took Jesus and flogged him. इस पर पिलातुस ने यीशु को कोड़े लगवाए. Now, scourging or flogging means to have a person whipped. Using a whip, you whip the person. The number of lashes was decided by the severity of the crime. और कोड़े, यहां पर कोड़े दिए जा रहे, कोड़ों से मारा जा रहा है, और कितने कोड़े उसको मारे जाएंगे वो उसके दंड के या अपराध के गंभीरता पर निर्भर करता है. The Jewish law allowed a man to be beaten not more than 40 times. यहूदी जो नियम है वो ये था कि 40 से ज्यादा बार नहीं मारा जा सकता है. And the victims, what used to happen during a flogging, ये जो कोड़े मारने के समय पर क्या होता है, the victim's upper body was made bare. They removed his clothes on the upper body. वो उस पीड़ित व्यक्ति के ऊपरी शरीर को निर्जन किया जाता है, उसके कपड़ों को उतार दिया जाता है. And then his hands are tied to a pillar, और उसके हाथों को एक स्तंभ पर बांध दिया जाता है. And then he is whipped, और फिर उसको कोड़ों से मारा जाता है. This punishment is so severe that it can sometimes kill the victim. ये इतना पीड़ा देने वाला एक सजा है कि कभी कभी कोड़े मारते मारते ही पीड़ित जो है वहां पर मर जाता है. And Jesus' case, the soldiers whipped Jesus and then they went beyond that. यीशु के मामले में इन सैनिकों ने उसको कोड़े मारने के बाद और भी कुछ उसके साथ किया. I want you to read verse 2 and 3 there of chapter 19. मैं चाहता हूं कि दूसरे और तीसरे आयत को भी पढ़े जो 19 के अध्याय का है. And the soldiers twisted together a crown of thorns, because it seems that Jesus was claiming to be a king. यीशु मसीह अपने आप को राजा बता रहा था. देखिए वो क्या करते हैं. And the soldiers twisted together a crown of thorns and put it on his head and arrayed him in purple robe. Royalty was normally put on with purple colors. They came up to him saying, "Hail, King of the Jews!" Struck him with their hands. सिपाहियों ने कांटों का मुकुट गूंथकर उसके सिर पर रखा. राजा हो तो कांटों का मुकुट पहनो, और उसे बैंजनी वस्त्र पहनाया. राजा महाराजाओं को बैंजनी वस्त्र दिया जाता था, और उसके पास आकर कहने लगे, हे यहूदियों के राजा प्रणाम, और उससे थप्पड़ भी मारे. Despite all this, the Jews were not pacified. ये सारी चीजों को करने के बाद भी यहूदी लोग शांत नहीं हुए. They kept insisting that Jesus should be crucified. वो इस बात पर अड़े रहे कि यीशु को क्रूस पर चढ़ाकर मारना होगा. I want you to read verse 15 to verse 18. 15वें आयत से 18वें आयत को पढ़िए. They cried out, "Away with him! Away with him! Crucify him!" Pilate said to them, "Shall I crucify your king?" The chief priests answered, "We have no king but Caesar." So he delivered him over to them to be crucified. So they took Jesus and he went out, bearing his own cross, to the place called the place of a skull, which in Aramaic is called Golgotha. There they crucified him, and with him 2 others, one on either side, and Jesus between them. परंतु वे चिल्लाए,
ले जा उसे क्रूश पर चढ़ा। पिलातुस ने उनसे कहा, क्या मैं तुम्हारे राजा को क्रूश पर चढ़ाऊं? प्रधान याजकों ने उत्तर दिया, कैसर को छोड़ हमारा और कोई राजा नहीं। तब उसने उसे उनके हाथ सौंप दिया ताकि वह क्रूश पर चढ़ाया जाए। तब वे यीशु को ले गए और वह अपना क्रूश उठाए हुए उस स्थान तक बाहर गया जो खोपड़ी का स्थान कहलाता है और इब्रानी में गुलगुता। वहां उन्होंने उसे और उसके साथ और 2 मनुष्यों को क्रूस पर चढ़ाया, एक को इधर और एक को उधर और बीच में यीशु को। So Jesus, bloodied and exhausted after the scourging, was made to carry his own cross. कोड़े खाने से लहूलुहान और कमजोर हो चुका था, लेकिन उससे क्रूश उठवाया गया। Finally, the soldiers crucified him and distributed his clothes among themselves. और आखिर में इन सैनिकों ने उसको क्रूश पर चढ़ाया और उसके कपड़ों को भी बांट लिया आपस में। Read verse 23, 23वीं आयत को पढ़े। When the soldiers had crucified Jesus, they took his garments and divided them into 4 parts, 1 part for each soldier, also his tunic, but the tunic was seamless, woven in 1 piece from top to bottom. जब सैनिक यीशु को क्रूश पर चढ़ा चुके तो उसके कपड़े लेकर 4 भाग किए, हर सैनिक के लिए 1 भाग, और कुर्ता भी लिया, परंतु कुर्ता बिन सियन ऊपर से नीचे तक बुना हुआ था। Now this is the scene where our passage begins. और इस दृश्य से हमारे खंड की शुरुआत होती है। Jesus is on the cross, यीशु मसीह क्रूश पर है। Some soldiers and his followers standing at the foot of the cross, कुछ सैनिक और उसके अनुयायी क्रूश के नीचे खड़े थे। And now I want you to read, chapter 19 verse 26 and 27. मैं चाहता हूं कि आप 26 और 27 आयत को पढ़ें। When Jesus saw his mother and the disciple whom he loved standing nearby, he said to his mother, "Woman, behold your son." And then he said to the disciple, "Behold your mother." And from that hour the disciple took her to his own home. जब यीशु ने अपनी माता और उस चेले को जिससे वह प्रेम रखता था पास खड़े देखा, तो अपनी माता से कहा, हे नारी, देख ये तेरा पुत्र है। तब उसने चेले से कहा, ये तेरी माता है। और उसी समय से वह चेला उसे अपने घर ले गया। इमेजिन योरसेल्फ इन जीसस प्लेस। अपने आप को यीशु मसीह के जगह पर रखकर सोचो। Scourged, mocked and slapped by soldiers. कोड़े खाए, मजाक उड़ाया गया, सैनिकों से थप्पड़ खाए। Made to carry the cross, क्रूश उठवाया गया। Nailed then to a cross, कीलों से क्रूश पर टांगा गया। All bloodied and exhausted, पूरी तरीके से लहूलुहान और थका हुआ। Would you have any physical or mental capacity to care for someone else? अगर आप उनके जगह पर होते तो क्या आपके शारीरिक और मानसिक अवस्था ऐसी होती कि आप किसी और के बारे में सोच सको? But even in that condition, when Jesus saw his mother, he was filled with compassion for her. लेकिन उस परिस्थिति में भी यीशु ने जब अपनी माता को देखा, वो उसके लिए करुणा से भर जाता है। Faced with the darkest hour of her life, her eldest son being crucified, Jesus was concerned for her. वो अपने जीवन के सबसे मुश्किल घड़ी का सामना कर रही थी। उसका सबसे बड़े बेटे को क्रूश पर चढ़ाया जा रहा था। यीशु उसके बारे में सोचकर चिंतित होता है। Probably he did not expect his own brothers to immediately come to his mother's help. शायद वो
यह भी अपेक्षा नहीं करता था कि उसके खुद के भाई उसकी मदद के लिए आएंगे। फॉर these brothers also did not believe in Jesus' claim and probably did not like the fact that their mother believed in him, क्योंकि ये भाई ऐसे थे जो यीशु पर विश्वास नहीं करते थे, उसके दावों पर विश्वास नहीं करते थे, और वो इस बात को पसंद नहीं करते थे शायद कि उनकी माता इसके पीछे चल पड़ी है। Read what John says about the attitude of Jesus' brothers towards him. यूहन्ना को पढ़ के देखिए क्या वो बोलता है कि यीशु के प्रति यीशु के भाइयों का रवैया कैसा था। जॉन चैप्टर 7 एंड वर्स 5, यूहन्ना 7वां अध्याय और 5वां आयत। फॉर नॉट इवन हिज ब्रदर्स बिलीव्ड इन हिम, क्योंकि उसके भाई भी उस पर विश्वास नहीं करते थे। Although after his resurrection, these brothers did believe in Jesus and joined their mother. भले बात अलग है कि इसके उनके पुनरुत्थान के बाद इन भाइयों ने भी यीशु मसीह के ऊपर विश्वास किया और वो अपने मां के साथ जुड़ गए। But on the cross, Jesus was concerned about his mother's immediate condition. लेकिन उस क्रूस के ऊपर वो अपनी माता के शीघ्र अवस्था के ऊपर चिंता व्यक्त कर रहा था। But Jesus knew how to love her even in that condition. लेकिन यीशु जानता था कि उस अवस्था में भी वो उससे कैसे प्रेम करे। In verse 26 says, Jesus saw the disciple whom he loved standing nearby. यीशु ने उस चेले को जिससे वह प्रेम रखता था पास खड़े देखा। Jesus had loved his disciples with a divine love. यीशु ने अपने चेलों से एक दिव्य प्रेम से प्रेम किया था। Jesus is the Son of God. यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र है। And God had sent him into this world to show his love to the world. और परमेश्वर ने अपने इस पुत्र को दुनिया में इसलिए भेजा ताकि वो अपने प्रेम को अपने पुत्र के द्वारा दर्शाए। Read John chapter 3 and verse 16. तीसरे अध्याय के 16वें आयत को आप एक बार पढ़े। John chapter 3 verse 16. यूहन्ना 3 अध्याय 16वां आयत। For God so loved the world that he gave his only son, that whoever believes in him should not perish but have eternal life. क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना एकलौता पुत्र दे दिया ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वे नष्ट ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। The deeds of this world are continually evil. इस जगत के सारे कार्य लगातार बुरे हैं। And therefore God's judgment is due to come upon this world. इसीलिए परमेश्वर का दंड इस जगत पर आने वाला है। But God loves this world. लेकिन परमेश्वर इस जगत से प्रेम करता है and wants to save this world from his own judgment, और इस जगत को अपने ही दंड से बचाना चाहता है। That is why he sent his son into this world. इसलिए अपने पुत्र को इस जगत पर भेजा। Read verse 17 there, John chapter 3 and verse 17. तीसरे अध्याय के ही 17वें आयत को पढ़े। For God did not send his son into the world to condemn the world, but in order that the world might be saved through him. परमेश्वर ने अपने पुत्र को जगत में इसलिए नहीं भेजा कि जगत पर दंड की आज्ञा दे, परंतु इसलिए कि जगत उसके द्वारा उद्धार पाए। The Son came and manifested God's love to the sinful people of this world. पुत्र आकर इस जगत के पापमय लोगों के ऊपर परमेश्वर के प्रेम को प्रकट करता है। Jesus loved his disciples with God's love. यीशु मसीह ने अपने चेलों से एक दिव्य प्रेम से प्रेम किया था, परमेश्वर के प्रेम को उन पर दर्शाया था।
And because of this divine love poured into the life of his disciples, और क्योंकि इस दिव्य प्रेम को उसके चेलों के हृदयों में उसने उंडेला था, Jesus expected them to show the same love to one another. इसीलिए यीशु उनसे अपेक्षा करता है कि वो भी एक दूसरे से ऐसा ही प्रेम करें. I want you to read a few verses. John chapter 13 and verse 34. मैं चाहता हूं कि यूहन्ना के 13वें अध्याय और 34वें आयत को पढ़े. John chapter 13 verse 34. A new commandment I give to you, that you love one another. Just as I have loved you, you also are to love one another. मैं तुम्हें एक नई आज्ञा देता हूं कि एक दूसरे से प्रेम रखो. जैसा मैंने तुमसे प्रेम रखा है, वैसे ही तुम भी एक दूसरे से प्रेम रखो. Chapter 15 and verse 9. 15वां अध्याय 9वां आयत. Chapter 15 verse 9. As the Father has loved me, so have I loved you. Abide in my love. जैसे पिता ने मुझसे प्रेम रखा, वैसे ही मैंने तुमसे प्रेम रखा. मेरे प्रेम में बने रहो. And verse 12 and also verse 17. 12वां आयत और 17वां आयत भी. This is my commandment, that you love one another as I have loved you. मेरी आज्ञा यह है कि जैसा मैंने तुमसे प्रेम रखा, वैसे ही तुम भी एक दूसरे से प्रेम रखो. Verse 17. These things I command you, so that you will love one another. इन बातों की आज्ञा मैं तुम्हें इसलिए देता हूं कि तुम एक दूसरे से प्रेम रखो. That is why Jesus put his mother into the care of his disciple. इसलिए यीशु ने अपनी माता को अपने चेलों के हाथों में सौंपा. He knew that this disciple will love his mother with the same love with which he loved his disciples. वो जानता था कि ये चेला उसकी माता से ऐसा ही प्रेम करेगा जैसा प्रेम उसने उस चेले को दिया था. That is why Jesus tells his mother, woman, behold your son. उसलिए वो अपनी माता से कहता है, हे नारी, देख, ये तेरा पुत्र है. And he tells his disciple, behold your mother. और अपने चेले से कहता है, ये तेरी माता है. As expected, from that hour, this disciple made Mary a member of his own house. जैसे अपेक्षा की गई थी, उसी समय से इस चेले ने मरियम को अपने घर का अंग बनाया. And he loved her with Jesus' love. और यीशु के प्रेम से उससे प्रेम किया. The same love that he had received from Jesus, वही प्रेम जो उसने यीशु मसीह से पाया था. Selfless love, निस्वार्थ प्रेम, sacrificial love, बलिदान पूर्ण प्रेम. This is the difference between human love and divine love. मानवीय प्रेम और दिव्य प्रेम में यही फर्क है. Humans love when it is convenient for them. मनुष्य का प्रेम सुविधाजनक प्रेम है. God loves when it is deeply inconvenient for him. परमेश्वर हमसे तब प्रेम करता है जब उसके लिए यह प्रेम बहुत ही असुविधाजनक है. Through Jesus Christ, God made sinners to be the members of his family. Not goody, holy people, sinners to be the members of his family. यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर ने पापियों को अपने घराने का अंग बनाया है. अच्छे पवित्र लोगों को नहीं, पापियों को. That is why we who were sinners called God our Father. उसीलिए हम पापी इस परमेश्वर को अपना पिता कहते हैं. And Jesus became our elder brother, और यीशु हमारा बड़ा भाई है. Yes, he is our God, he is our Lord, but he is also our elder brother. वो हमारा परमेश्वर है, वो हमारा प्रभु है, लेकिन वो हमारा बड़ा भाई भी है. That is why he told Mary that now onwards his disciple is a son. उसीलिए वो मरियम से कहता है
कि अब से ये मेरा जो चेला है वो तेरा बेटा है. He told the disciple that now onwards Mary is his mother. और वो चेले से कहता है कि मरियम तेरी माता है. And that is why we all call each other brother or sister. और इसलिए हम सब एक दूसरे को भाई या बहन कहते हैं. For we are brothers and sisters in Christ. क्योंकि हम मसीह यीशु में एक दूसरे के भाई और बहन हैं. And we need to love each other with the same love with which our elder brother has loved us. और हमें एक दूसरे से वैसा ही प्रेम करना है जैसे यीशु मसीह ने हमसे प्रेम किया. Love each other when it is deeply inconvenient for us. एक दूसरे से तब प्रेम करें जब हमारे लिए वो प्रेम करना बहुत ही असुविधाजनक हो. We are all from different homes, from different cultural backgrounds, even different countries. हम सब अलग अलग घरों से हैं, अलग अलग सांस्कृतिक संदर्भों से हैं, अलग अलग देशों से हैं. There might be many reasons for us not to like one another. एक दूसरे को ना पसंद करने के लिए हमारे पास बहुत से कारण हैं. We have different accents, हमारी बोली अलग है. We have different habits, अलग अलग आदतें हैं. We have different food habits, अलग अलग खान पान है. More than that, we are all sinful people. उससे ज्यादा हम पापमय लोग हैं. But we must love each other with divine love. लेकिन दिव्य प्रेम से हमें एक दूसरे से प्रेम करना है. We must love each other with the love of Jesus. यीशु मसीह के प्रेम से एक दूसरे से प्रेम करना है. Even when we are suffering, we must look to each other's needs. हम जब दुख उठा रहे हो तब भी एक दूसरे की जरूरतों के बारे में सोचें. We must show selfless love, sacrificial love to one another. निस्वार्थ प्रेम, बलिदान पूर्ण प्रेम को दर्शाना है. Jesus is loving each and every one of us through the church. यीशु मसीह कलीसिया के द्वारा हम सबसे प्रेम करता है. My second point, दूसरा बिंदु, He will give us eternal life. वो हमें अनंत जीवन देगा. I want you to come back to John chapter 19 and read verse 28 and 29. हम यूहन्ना के 19वें अध्याय में वापस आकर 28वें और 29वें आयत को पढ़ेंगे. After this, Jesus, knowing that all was now finished, said, to fulfill the scripture, I thirst, or I am thirsty. A jar full of sour wine stood there. So they put a sponge full of the sour wine on a hyssop branch and held it to his mouth. इसके बाद यीशु ने ये जानकर कि अब सब कुछ पूरा हो चुका, इसलिए कि पवित्र शास्त्र में जो कहा गया है वो पूरा हो, कहा, मैं प्यासा हूं. वहां सिरके से भरा हुआ एक बर्तन रखा था. अतः उन्होंने सिरके में भिगोए हुए स्पंज को जूफे पर रखकर उसके मुंह से लगाया. Many things that happened on that first Good Friday happened according to prophecy recorded in the scriptures. Good Friday के दिन पर बहुत सारी ऐसी बातें होती है जो पवित्र शास्त्र में दिए गए भविष्यवाणी के अनुसार होता है. Jesus' suffering on that day was according to God's plan, which was revealed through the scriptures. उस दिन यीशु का दुख उठाना परमेश्वर की योजना के अनुसार था, जिसका प्रकाशन पवित्र शास्त्र में किया गया था. One of the prophecies was that just before he dies, Jesus' enemies will give him sour wine. और उसमें से एक भविष्यवाणी ऐसी थी कि यीशु मरने से पहले यीशु के दुश्मन उसको सिरका पिलाएंगे, which is basically vinegar wine diluted with water. The soldiers who used to carry out this crucifixion used to drink this sour wine or vinegar wine to give them some quick energy. It was basically their energy drink. ये जो क्रूस पर जो सैनिक जो क्रूस पर चढ़ाते लोगों को, वो ये सिरके को पीते थे ताकि उनको थोड़ा बल मिले. और ये बेसिकली उनके लिए एक एनर्जी ड्रिंक जैसा था. पिएंगे तो तुरंत थोड़ा उनको एनर्जी आता है.
And so we find this prophecy, go back into the Old Testament, Psalm chapter 69 and verse 21. और हम इस भविष्यवाणी को पाएंगे पुराने नियम में भजन संहिता में 69वां अध्याय और 21वें आयत में. लेट्स गो देयर. Psalm and Psalm chapter 69 and verse 21. They gave me poison for food, and for my thirst they gave me sour wine to drink. लोगों ने मेरे खाने के लिए इंद्रायण दिया और मेरे प्यास बुझाने के लिए मुझे सिरका पिलाया. Now this was part of a hymn written by King David almost 1,000 years before Jesus came on the scene. ये एक ऐसे भजन का भाग है जिसको दाऊद राजा ने यीशु मसीह से 1000 साल पहले लिखा था. And many parts of this hymn, if you can go home and read it, आप घर पर जाकर इसको पढ़ सकते. Many parts of this hymn find connections with Jesus' life, और इसमें बहुत सारी बातें जो है यीशु मसीह के जीवन से संबंधित है. So what leads to the fulfillment of this prophecy in verse 21? तो ये जो भविष्यवाणी दिया गया है 21वें आयत में कि उसको सिरका पिलाया जाएगा, ऐसी क्या बातें हुई कि उसको सिरका पिलाया गया. Now let us go back to John chapter 19 and verse 28. हम यूहन्ना 19वें अध्याय और 28वें आयत में वापस जाएंगे. Towards the very end of his time on the cross, Jesus says, I am thirsty. क्रूस पर उसका समय पूरा होते होते यीशु मसीह कहता है मैं प्यासा हूं. For the readers of this gospel, the author is not just stating a fact, but also making a theological point. इस सुसमाचार को पढ़ने वालों के लिए लेखक सिर्फ एक तथ्य को प्रस्तुत नहीं कर रहा है, बल्कि एक आध्यात्म विद्या को भी हमारे सामने रख रहा है. Because in many places through this gospel, Jesus said that He came to put an end to thirst. क्योंकि इस सुसमाचार में कई बार यीशु मसीह कहता है कि मैं प्यास बुझाने के लिए आया हूं. तो यानी वो जब खुद बोलता है कि मैं प्यासा हूं, यूहन्ना को वो सारी बातें याद आती है जब वो कहता है मैं प्यास बुझाने के लिए आया हूं. Every time, when John hears these words from Jesus, I am thirsty, he is reminded of all those instances where Jesus said, I came to put away your thirst. I want you to read John chapter 4 and verse 14. मैं चाहता हूं कि आप यूहन्ना के 4थे अध्याय और उसके 14वें आयत को पढ़ें. John chapter 4 verse 14. But whoever drinks of the water that I will give him, now these are Jesus' words, whoever drinks of the water that I will give him will never be thirsty again. The water that I will give him will become in him a spring of water welling up to eternal life. परंतु जो कोई उस जल में से पिएगा जो मैं उसे दूंगा, वह फिर अनंत काल तक प्यासा ना होगा. वरन जो जल मैं उसे दूंगा वह उससे एक सोता बन जाएगा जो अनंत जीवन के लिए उमड़ता रहेगा. Jesus says, if someone drinks the water he gives, that person will never thirst. यीशु मसीह कहता है अगर कोई वो जल पिए जो वो देता है तो वो कभी प्यासा नहीं होगा. But that water that he gives leads to eternal life. लेकिन वो जो पानी उसे देगा वो उसे अनंत जीवन की ओर ले जाता है. What is he talking about? वो क्या बोल रहा है यहां पर? To understand this, we must go back even to the very beginning of the Bible. इसको समझने के लिए हमें बाइबल के शुरुआत में जाना पड़ेगा. When God created human beings, He created us spirit and body. जब परमेश्वर ने मनुष्य को रचा तो हमें आत्मा और शरीर देकर रचा. God gave us spiritual life and physical life. परमेश्वर ने हमें आत्मिक जीवन और शारीरिक जीवन दिया है. God also promised to give them eternal life if they obeyed perfectly. परमेश्वर ने उनसे यह भी कहा कि अगर आप
सिद्धता से आज्ञाकारी रहते हो तो मैं आपको अनंत जीवन भी दूंगा. बट मैन डिसोबेड एंड सिन्ड अगेंस्ट गॉड. लेकिन मनुष्य ने परमेश्वर के आज्ञाओं को नहीं माना और परमेश्वर के खिलाफ पाप किया. सिन इज डिसोबीडियंस टू गॉड्स लॉ. पाप का मतलब है परमेश्वर की आज्ञाओं को तोड़ना. एज सून एज द फर्स्ट ह्यूमन बीइंग सिन्ड, जैसे ही पहले मनुष्यों ने पाप किया, their relationship with God was broken. उनका जो परमेश्वर के साथ जो रिश्ता था वो टूट गया. And their relationship was broken from the source of life. और जीवन का जो स्रोत था उनसे ही उनका रिश्ता टूट गया. And therefore what happens when you are not connected to the source of life? जीवन के स्रोत से आपका कनेक्शन टूट जाता है तो क्या होता है? The God who gave you spiritual life and physical life, if that relationship is broken, जिस परमेश्वर ने आपको आत्मिक जीवन दिया, शारीरिक जीवन दिया, उससे आपका रिश्ता कट जाता है तो क्या होगा? Death begins to come, take effect in your life. आपके जीवन में मृत्यु प्रवेश करता है. Since that day, every human being born in this world is born spiritually dead. उस दिन से हरेक मनुष्य जो इस पृथ्वी पर जन्म लेता है वो आत्मिक रीति से मरा हुआ पैदा हुआ है. Which means what is involved in our spiritual life? हमारे आत्मिक जीवन में क्या क्या बातें हैं? Which means our intellect, our emotions, our willpower has become so corrupted by sin that it has no power to please God. हमारी जो बुद्धि, हमारी भावनाएं, हमारी इच्छा शक्ति पाप से इतना दूषित हो चुका है कि अब उसमें परमेश्वर को प्रसन्न करने की कोई काबिलियत बच नहीं गई है. All our thoughts, all our feelings and all our actions are continually evil. हमारा हर सोच, हमारी हर भावना, हमारा हर कार्य लगातार दुष्ट है. It may look good from the outside, but when we check the motivations of our own heart, we realize that we are all rotten from the inside. बाहर से तो हम सब अच्छे लगते हैं, हमारी सोच अच्छी है, हमारी बोली अच्छी है, लेकिन जब हम अपने हृदयों में झांक कर देखें तो हम ये पाते हैं कि हम हृदय से सड़े हुए हैं. We are not only spiritually dead, but now we are slowly moving towards physical death. हम सिर्फ आत्मिक रीति से मरे हुए नहीं है, हम धीरे धीरे शारीरिक मृत्यु की तरफ चल रहे हैं. Physical death is also the consequence of sin. शारीरिक मृत्यु भी पाप का परिणाम है. And after our physical death, और हमारे शारीरिक मृत्यु के बाद, God will judge us. परमेश्वर न्याय करेगा. And punish us with eternal death, और हमें अनंत मृत्यु का दंड देगा. What is eternal death? अनंत मृत्यु क्या है? Eternal death is the never ending punishment of God. अनंत मृत्यु परमेश्वर के कभी ना खत्म होने वाला दंड है. Where we will be completely separated from all God's blessings. जब हम परमेश्वर के हर अनुग्रह से अलग किए जाएंगे. Today, even though we are sinners, we enjoy many of the blessings that God gives us. आज हम पापी हैं, फिर भी हम परमेश्वर के अनेक आशीषों का अनुभव करते. But after we die and we enter into eternal death, no more blessings, not even one. मृत्यु के बाद कोई आशीष नहीं होगा. So our current state of spiritual death, where our deeds are continually evil, is preparing us for that eternal death. तो आज जो हमारी जो आत्मिक मृत्यु की अवस्था है, जब हम लगातार पापों को कर रहे हैं, ये हमें उस अनंत मृत्यु के लिए तैयार कर रही है.
And this spiritual condition where we are unable to live a life pleasing to God can be compared to thirst which will lead people to death. और इस आत्मिक अवस्था उसको हम कंपेयर कर सकते हैं उस प्यास के साथ जो प्यास लोगों को मृत्यु तक पहुंचाता है. People are living in spiritual thirst and it is leading them to eternal death. लोग आत्मिक रीति से वो आत्मिक प्यास में है और धीरे धीरे ये आत्मिक प्यास उनको मार रहा है. But on that cross, लेकिन उस क्रूस के ऊपर Jesus provided a way out for us. यीशु मसीह ने हमारे लिए एक नया मार्ग खोला. He took all our sins upon himself. उसने हमारे सारे पापों को अपने ऊपर ले लिया. And he endured the eternal punishment or eternal death which should have come upon us. और उसने उस अनंत दंड अथवा अनंत मृत्यु को सहा जो हमारे ऊपर आना चाहिए था. God punished him for our sins. परमेश्वर ने हमारे पापों के लिए उसको दंड दिया. That is why on the cross Jesus said, my God, why have you forsaken me? उसीलिए उस क्रूस के ऊपर यीशु मसीह चिल्लाकर कहता है, हे मेरे परमेश्वर, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया? I want you to read that portion. मैं चाहता हूं कि आप उसको पढ़ें. मत्ती का 27वां अध्याय और 46वां आयत. Matthew chapter 27 and verse 46. मत्ती 27 और 46वां आयत. Matthew 27 verse 46. And it is after let me read. And about the 9th hour, Jesus cried out with a loud voice, saying, Eli, Eli, lema sabachthani. That is, my God, why have you forsaken me? तीसरे पहर के निकट यीशु ने बड़े शब्द से पुकार कर कहा, एली एली लमा सबक्तनी. अरमिक लैंग्वेज है, अर्थात हे मेरे परमेश्वर, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया? And it is after that he becomes thirsty and is given sour wine. और उसके बाद वो प्यासा होता है और उसको सिरका पिलाया जाता है. Read verse 48. 48 आयत को पढ़े. And one of them at once, a man took a sponge, filled it with sour wine, put it on a reed and gave it to him to drink. उनमें से एक तुरंत दौड़ा और स्पंज लेकर सिरके में डुबाया और सरकन्ने पर रखकर उसे चुसाया. So on the cross he bore our sins and endured the wrath of God. तो उस क्रूस के ऊपर उसने हमारे पापों को उठाया और परमेश्वर के क्रोध को हमारे लिए सहा. So after that, when Jesus says, I am thirsty, John sees a spiritual significance in that statement. तो उसके बाद जब यीशु मसीह ये कहता है कि मैं प्यासा हूं, तो यूहन्ना उस बात में एक आत्मिक महत्व को देख पाता है. Jesus had given himself completely in order to save us from eternal death. यीशु मसीह ने अपने आप को पूर्ण तरीके से दे दिया था ताकि वो हमें उस अनंत मृत्यु से बचा पाए. He gave himself completely, अपने आप को पूरी तरीके से दे दिया. So much that he did not have an ounce of energy left in him. इतना इस हद तक दे दिया कि उसमें बिल्कुल कोई बल बाकी बच नहीं गया था. That is why he had to ask for something to drink. इसीलिए वो कुछ पीने के लिए मांगता है. He says, I am thirsty. वो कहता है मैं प्यासा हूं. And after he received this sour wine, और इस सिरके को पीने के बाद, which is basically an energy drink, जो एक energy drink है, Jesus says, then he gets the energy to be able to say, it is finished.
उसके बाद उसमें थोड़ा बल आता है, तब वो बोल पाता है क्या? पूरा हुआ. Which means that he has satisfied God's wrath on our behalf. जिसका मतलब यह है कि उसने हमारे लिए परमेश्वर के क्रोध को तृप्त कर दिया है. And then he bows his head and gives up his life. और फिर अपने सिर को झुकाकर प्राण छोड़ देता है. I wanted to read verse 30 there. Go back to John chapter 19 verse 30. यूहन्ना 19वें अध्याय 30वें आयत में वापस जाएं. 19वां अध्याय 30वां आयत फिर से पढ़ेंगे. When Jesus had received the sour wine, he said, "It is finished." And he bowed his head and gave up his spirit. जब यीशु ने वह सिरका लिया तो कहा पूरा हुआ, और सिर झुकाकर प्राण त्याग दिए. And all those who believe that on the cross Jesus endured the eternal death on our behalf. आज जितने भी लोग इस बात पर विश्वास करेंगे कि क्रूस पर यीशु ने हमारे लिए अनंत मृत्यु को सहा, that he died on behalf of me, कि वो मेरे लिए मरा, God will forgive your sins. परमेश्वर आपके पापों को क्षमा करेगा. Why? क्यों? Because Jesus paid the price of your sins. क्योंकि यीशु मसीह ने आपके पापों का दाम चुका दिया है. And he will liberate us from the sinful condition, that condition of spiritual thirst. और वो हमें उस आत्मिक अवस्था से छुड़ाएगा, आत्मिक प्यास की अवस्था. That is why, see what Jesus says in John chapter 6 and verse 35. देखिए यूहन्ना के 6वें अध्याय में और 35वें आयत में यीशु मसीह क्या कहता है. John chapter 6 verse 35. Jesus said to them, "I am the bread of life. Whoever comes to me shall not hunger, and whoever believes in me shall never thirst." 35वां आयत लिखा है, यीशु ने उनसे कहा, जीवन की रोटी मैं हूं, जो मेरे पास आता है वह कभी भूखा ना होगा, और जो मुझ पर विश्वास करता है वह कभी प्यासा न होगा. Those who believe in Jesus will receive the Holy Spirit, who will give us the power to live a holy life. जो लोग यीशु पर विश्वास करेंगे वो परमेश्वर के पवित्र आत्मा को पाएंगे, जो हमें मदद करेगा कि हम एक पवित्र जीवन जी पाए. We will be sanctified by the Holy Spirit in both spirit and then body, and will eventually enter into eternal life. पवित्र आत्मा हमें पवित्र करेगा. पहले हमें आत्मिक रीति से पवित्र करेगा, आखिर में हमारे शरीर को पवित्र करेगा और हमें अनंत जीवन में वो प्रवेश कराएगा. Read John chapter 7 verse 38 and 39. यूहन्ना 7वां अध्याय 38 और 39वें आयत को हम पढ़ेंगे. Whoever believes in me, as the scripture has said, out of his heart will flow rivers of living water. Now this he said about the Spirit, whom those who believed in him were to receive, for as yet the Spirit had not been given, because Jesus was not yet glorified. जो मुझ पर विश्वास करेगा, जैसे पवित्र शास्त्र में आया है, उसके हृदय में से जीवन के जल की नदियां बह निकलेंगी. उसने ये वचन पवित्र आत्मा के विषय में कहा, जिसे उस पर विश्वास करने वाले पाने पर थे, क्योंकि आत्मा अब तक न उतरा था, क्योंकि यीशु अब तक अपनी महिमा को ना पहुंचा था. There may be some of you here who are spiritually thirsty today. आप में से शायद ऐसे कुछ लोग हैं जो आत्मिक रीति से प्यासे हैं. You're not able to live a holy life in any way. किसी भी तरीके से आप एक पवित्र जीवन नहीं जी पा रहे हो. Constantly burdened by the guilt of sin. पाप का जो बोझ है वो आपको दबाता जा रहा है. If you die today, you stand to face God's eternal punishment, eternal death. और अगर आज आपकी मृत्यु हो जाती है, आप परमेश्वर के अनंत
दंड, अनंत मृत्यु का सामना करोगे। इफ यू आर इन दैट कंडीशन टुडे, देन बिलीव इन दिस गुड न्यूज। अगर आप उस परिस्थिति में हो तो इस सुसमाचार के ऊपर विश्वास करें। बिलीव दैट ऑन दैट गुड फ्राइडे जीसस टुक दैट इटर्नल पनिशमेंट ऑन माई बिहाफ। ये विश्वास करें कि उस गुड फ्राइडे पर यीशु ने मेरे जगह पर अनंत दंड को सहा। As soon as you believe this, God will forgive you your sins because of Jesus' sacrifice. जैसे ही आप इस पर विश्वास करते हो, परमेश्वर आपके पापों को क्षमा करेगा यीशु मसीह के बलिदान के आधार पर। And you will receive the gift of the Holy Spirit. और आप पवित्र आत्मा का दान पाओगे। And the Holy Spirit will come and quench your spiritual thirst. और पवित्र आत्मा आकर आपके आत्मिक प्यास को बुझाएगा। He will liberate you from your sinful condition. आपको आपके पापमय अवस्था से छुटकारा दिलाएगा। He will help you to overcome sin and to live a holy life. आपको मदद करेगा कि आप पाप के ऊपर विजय प्राप्त कर सके और एक पवित्र जीवन जी सके। The Holy Spirit will lead you into the promised eternal life. पवित्र आत्मा आपको अनंत जीवन में ले जाएगा। Eternal life is a life that goes beyond this earthly life. अनंत जीवन वो जीवन है जो इस पृथ्वी के जीवन से परे है, उसके बाद है। It's in a new world which God will create. एक नई दुनिया में है जो परमेश्वर रचेगा। Where we will be able to experience fully the presence of God with all His blessings. जहां पर हम परमेश्वर के पूर्ण उपस्थिति का अनुभव कर पाएंगे उसके सारे आशीषों के साथ।